حلالہ غیر اسلامی ایسا نہیں ہے. جو اپنے آپ کو مذہب کا رہنما کہتے آئے ہیں انہوں نے تو مذہب کی بدخدمتی کی ہے اور لوگوں کا بھی نقصان پہنچایا ہے. مذہب اسلام میں کچھ غلط نہیں ہے. ملاؤں کو اسلام کیسے سمجھ لیا ہے؟ جو ملا ہیں ان کا تو پروویژن ہی نہیں ہے. اگر یہ اللہ پاک کی دین ہے, اللہ نے ہمیں بتایا ہے, اگر یہ کتابوں میں لکھا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا. جو چیز اسلام میں ہے وہ ہے اور وہ صحیح ہی ہے. حلالہ اس لیے صحیح ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے اس بات کا استنباط ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کتنی حدیث ہے؟ بالکل. کون کتنی حدیث؟ رسول اللہ کے جتنے اقوال و افعال ہیں وہ حدیث ہیں. اس کو انٹینشنلی لوگ کر رہے ہیں تو پھر وہ غلط ہے, اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. ہر ایک مسجد میں ہر خطبے میں کہنا چاہیے یہ غلط ہے. اگر یہ مسئلہ واقعی سلجھانے کی ضرورت ہے تو اس کو سلجھانے کی ضرورت ہے. پرسنل لا بورڈ کو بیٹھ کر سب جانتے ہیں حلالہ خراب ہے, سب اگری کرتے ہیں حلالہ صحیح نہیں ہے. آپ کے ذریعے سے چیلنج کرتا ہوں, اگر ان میں ہمت ہے تو پارلیمنٹ میں ڈرافٹ ریزولوشن لا کے دکھائیے انہیں کو. جو نکاح اس لیے کیا جائے کہ میں یہ نکاح کرنے کے بعد طلاق دے دوں گا, وہ نکاح نکاح ہی نہیں ہے. اگر حلالے کے خلاف ججمنٹ آیا آپ ویلکم کریں گے یا نہیں؟ آپ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں گن رکھ کے کہ شریعہ پہ کرو ورنہ نمسکار, السلام علیکم, آداب. میرا نام ہے طارق فتح. ایک بار پھر آپ کے پاس فتح کے فتوے کے ساتھ. آج کا جو موضوع ہے وہ ذرا کیا کہیں گے, تھوڑا سا ڈر ہٹ کے بات کرتے ہیں. مسلمانوں کے اندر اس کی وجہ, اس موضوع کی وجہ سے ہم پہ کئی بدنامی ہوتی ہے. شرمسار کچھ گھومتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہے کیا, اور جب بات شروع ہوتی ہے تو ہم اکثر ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ کیا عین اسلام کے مطابق ہے, قرآن کے مطابق ہے, حدیث کے مطابق ہے. اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع پہ گفتگو کریں, آج کے مہمانوں کا میں آپ سے انٹروڈکشن کرا دوں. سب سے پہلے ذکیہ سمان ہیں, کو فاؤنڈر تھیں بھارتیہ مسلم مہیلا آندولن کی. ان کے ساتھ ہیں شمینہ شفیق, اس دفعہ میں نے صحیح پروناؤنس کیا, ایکٹیوسٹ ہیں, فارمر ممبر آف دی نیشنل کمیشن آف ویمن. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو آور شو. میرے سیدھے ہاتھ پہ ایک سیاسی کارکن, سیاسی عہدیدار, مسلم ایکٹیوسٹ, فارمر جرنلسٹ, آپ سب جانتے ہیں شازیہ علمی کو, اور ان کے ساتھ اپنے مسلم ریسرچر عتیق الرحمان, جنہوں نے محمد زکریا کے ساتھ کافی کام کیا ان کی کتاب کے اندر, اور بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا اسلامک ہسٹری اور ریسرچ پہ. اور آخر میں لیکن سب سے کم نہیں, سب سے زیادہ ہمارے مفتی صاحب ہیں, ضیائی صاحب, ممبئی سے آئے ہیں, عالم دین ہیں, کچھ روشنی ڈالیں گے ان موضوعوں پہ, کیونکہ ہم سب کو تھوڑا بہت تو پتہ ہے لیکن اسلامی اصولوں کے بارے میں مفتی صاحب کو شاید زیادہ پتہ ہو. فتح کے فتویٰ پہ آج کا موضوع ہے حلالہ. آزاد بھارت میں مہیلاؤں کی آزادی کا سب سے بڑا آندولن شروع ہو چکا ہے. 13 اگست 2016 کو انہوں نے مجھے ایک طلاق دیا. ایک ہماری بہن ہے جس کا ابھی طلاق ہوا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کی کڈنی ڈیمیج تھی. سہتی رہی مگر کیا ہوا, بٹ یہی ہوا کہ مجھے طلاق مل جائے گا. یہ مہیلائیں 3 طلاق کے علاوہ ایک اور گھنونے رواج کا وروध کر رہی ہیں جس کا نام ہے حلالہ. اگر کوئی مرد اپنی عورت کو طلاق دے دے اور دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو پہلے اس کی پتنی کو کسی غیر مرد سے شادی کرنی پڑتی ہے, اس کے ساتھ شاریرک سمبندھ بنانے پڑتے ہیں. اس کے بعد ہی وہ غیر مرد سے طلاق لینے کے بعد واپس اپنے پتی سے شادی کر سکتی ہے. اسی سسٹم کو حلالہ یا نکاح حلالہ کہتے ہیں. کیندر سرکار سے لے کر مسلم مہیلاؤں کے سنگٹھنوں تک نے حلالہ کا وروध کیا ہے. طارق فتح آج پوچھیں گے کہ شریعت اور قرآن کے نام پر اسلام کے سوئمبھو ٹھیکیدار آخر کیوں حلالہ پر تالا نہیں لگانا چاہتے. فتح کا فتویٰ ہے کہ عورت کی زندگی کو نرک بنانے والی حلالہ پرتھا پر روک لگنی چاہیے.
تو मुफ्ती साहब, अक्सर जिक्र होता है इस मामले का कि मुसलमानों के यहाँ जब तलाक होती है तो एक वर्ड आता है हलाले का, कि मुसलमान मियाँ बीवी जब आपस में झगड़ा करके, यानी किसी गुस्से में आके या सास के साथ होके या गलत सालन बन गया तो तलाक होगी, जैसे भी हो, उसके बाद दोबारा शादी करनी हो उन्हीं मियाँ बीवी को, तो ये कहा जाता है कि किसी एक और शख्स के पास जाके उस औरत को उसके साथ शादी करनी चाहिए, फिर वो शख्स उसको लड़की को तलाक दे, उस औरत को तलाक दे, फिर दोबारा। और आम तौर पे ये कहा जाता है कि ये मौलाना लोग होते हैं, वो आपस में कहते हैं कि भाई घर की बात घर में रखी जाए, तो आप मुझसे या किसी और से ये निकाह कर दें, कल मैं तलाक दे दूंगा और उसके बाद दूंगा। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी आप डालेंगे कि क्या हो रहा है, इसमें सच्चाई क्या है और कहाँ कल्चर आता है और कहाँ मज़हब शुरू होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, तलाक एक ऐसा अमल है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नापसंद फरमाया है। और वो हजरात जो लोग जबरन जुल्म करते हुए किसी औरत को तलाक यूं ही वन सिटिंग में दे करके अपने घर से गेट आउट कर देते हैं, ऐसे लोगों को तो पहले दुनिया में भी जलील होना चाहिए और आखिरत में भी ऐसे लोग जलील हों, जिसे हम ट्रिपल तलाक कहते हैं। जी, कंडीशन से यहाँ पर ये आती है कि हलाला एक सूरत दिगर है शादी की, लेकिन आज कल जो आम रिवाज चला है हिंदुस्तान में या बर सग़ीर में, जी, इस तरीके की बातें कि आज निकाह कर लो सुबह तलाक दे दो, ये बिल्कुल शरअ इस बात की इजाज़त ही नहीं देती है। शरीयत बिल्कुल इजाज़त हो रहा है, देखिए इजाज़त नहीं देती शरीयत, कुछ हो रहा है ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, शरई नुक्ते नज़र से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो लोग जो करते हैं ये बिल्कुल अताब के लायक है, अल्लाह का अताब भी उन पर नाजिल होगा और कल क़यामत के मैदान में उसकी पकड़ भी होगी। मुफ्ती साहब, कोई फतवा हलाले के ख़िलाफ़ आपने जारी किया है जी, या डिक्लेरेशन किया है, कोई नोटिफिकेशन है कि ये बिल्कुल गैर इस्लामी है, इसको बंद करना चाहिए? हलाला गैर इस्लामी ऐसा नहीं है, ये जो तरीक़ा है जो आम तौर पे आजकल जो राइज है वो तरीका गलत है। क्या तरीका, दुरुस्त तरीका क्या है? दुरुस्त तरीका क्या है? अभी से हलाले को दूसरे नज़रिए से देखें आप, शरई नज़रिए से। जी, वो लोग जो सहाबा इकराम के ज़माने में जिसकी शौहर शहीद हो जाते थे मैदान जहाद में या किसी ऐसी जगह पर फौत हो जाते थे, तो फौत होने के बाद वो उनकी वाइफ जो होती थी इस हालत में होती थी कि उनकी ज़िंदगी आने वाले वक्त में कैसे गुजरे, क्या हालात हों, परेशानियाँ हों, फिर उनकी निकाह दूसरे से कराया जाता था या किसी ने उसे तलाक दे दिया, ऐसी नौबत आ गई। वो शहीद होने के बाद या उनके तलाकशुदा होने के बाद दूसरे शहर में रह रहे और वहाँ जिहाद के लोग पहुँचे हुए हैं, परेशानियाँ होती थी, तो एक दूसरे का निकाह करा दिया जाता था कि तुम अलग रहो। जब ये बात आगे चलकर बढ़ती थी, अब उन दोनों में नहीं जमे, फिर उनके अंदर ना जमे, फिर वो तलाक दें, तो अब चाहे तो पहले वाले शौहर से वो निकाह कर सकती है। ये जो शरई तरीका है, लाद कर, बांध कर, और जिसे हम दूसरे सूरत में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट निकाह, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट निकाह हुआ जो कि कॉन्ट्रैक्ट निकाह शरअन दुरुस्त नहीं है। बताइए, आप तो का बड़ा इसमें रोल रहा है मुसलमान औरतों की राइट्स में, हु आर दीज पीपल? ये क्या इसमें इनकी बेटियां नहीं हैं, इनकी बहनें नहीं हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम उठा रहे हैं जी, कि जो अपने आप को मजहब का रहनुमा कहते आए हैं, उन्होंने तो मजहब की बदखिदमती की है और लोगों का भी नुकसान पहुंचाया है। और ये हम एक डेमोक्रेसी में भी रहते हैं, हमारे कुरानिक राइट्स हैं, साथ ही साथ हमारे संवैधानिक राइट्स भी हैं। और खुद मुस्लिम औरतों ने डिमांड किया है कि हमारे देश में 3 तलाक पे पाबंदी लगे। अब सरकार का संवैधानिक दायित्व बनता है, क्योंकि ये जो चलन है नहीं, हलाला के बारे में आपका क्या है? तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पिटीशन है उसमें 2 प्रेयर्स हैं जी। एक प्रेयर ये है कि 3 तलाक पे पाबंदी होना चाहिए और साथ ही साथ निकाह हलाला पे भी पाबंदी होना चाहिए। मुफ्ती साहब, आप अफसर इस तरीके से हलाले पे पाबंदी लगनी हलाले को खत्म नहीं कर सकते आप, खत्म नहीं कर सकते, नहीं खत्म नहीं कर सकते। क्यों? जो इस तरीके को खत्म करें जो आज राइज है, आप उस तरीके को खत्म करें। मतलब एक हम डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, उसके कवानीन सारे सब। अगर दूसरा शौहर जिससे उसने शादी किया, जिससे दूसरे से शादी किया, अगर दोबारा उसके दरमियान में तलाक वाक़ई हो गई, तो क्या अगर वो दोबारा उस शख्स से शादी करना चाहे पहले से तो कर सकती है या नहीं? तो बिल्कुल क्यों नहीं करें? लेकिन इससे पहले तारिक साहब, इससे पहले
क्योंकि 3 तलाक का तरीका ही नाजायज तरीका है। इस तरीके तो से आप तलाक नाजायज हुआ नहीं ही नहीं। अभी एक सेकंड, 3 आपको तलाक मौका बोल के जो हमारे देश में तलाक चल पड़ा है, वो तलाक तो हुआ ही नहीं, क्योंकि कुरान की रोशनी में वो नाजायज तरीका है। तो जब तलाक हुआ ही नहीं तो हलाले का सवाल ही नहीं उठता, पहली बात। दूसरी बात, जो हलाला जिस तरह हमारे देश में हो रहा है, इसका कहीं हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं है। आपने जो कहा पार्शियली सही फरमाया, अगर मियाँ बीवी का तलाक पार्शियली सही, ओनली पार्शियली, बिल्कुल बिल्कुल ओनली पार्शियली सही है कि मियाँ बीवी में तलाक हो गया और उनकी और कहीं निकाह हो गया, और कहीं औरत ने दूसरे पति के साथ शादी कर ली जी। अब उसको लगता है कि भाई मैं मेरे पहले पति के साथ खुश थी और वापस वहां जाना चाहती हूँ, तो जाहिर है वो दूसरी शादी से जब तक वो तलाक नहीं लेगी तब तक तो वो नहीं जा पाएगी। ये हलाला का फ्रेमवर्क है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट है। आप बताइए। तारिक साहब, 2 पहलू हैं इस पूरे मुद्दे के। मैं नहीं जानती कि ज़किया का पिटीशन क्या कहता है, क्योंकि मैं उससे वाबस्ता नहीं हूँ। मैं अपनी इंडिविजुअल राय अगर आपको दूं, जब ये पिटीशन शायरा बानो मान लीजिए कोर्ट में गई, उनकी जैसी 2 और औरतें गई जिनको तलाक़े बिदा हुई थी, तो उस सूरत में जब कोर्ट ने ये राय मांगी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की भी राय मांगी, पर्सनल लॉ बोर्ड की भी राय मांगी कि आपकी राय क्या है और क्या होना चाहिए इसमें, अगर हकीकतन बीजेपी या मोदी जी इस मसले को सॉल्व करना चाहते होते तो वो ये कहते कि जो पर्सनल लॉ है उसको कोडिफाई करिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पर्सनल लॉज की इजाजत देता है। और वो ये कहते हैं कि ये जो प्रैक्टिस है, और डायलॉग करते एक पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ, बुलाकर इंटेलेक्चुअल्स को भी बिठाते, खाली पर्सनल लॉ बोर्ड की बात नहीं है। शाजिया मुझे कह लेने दीजिए, आप बाद में कह लीजिएगा, पूरी बात कर लेंगे। मगर हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेट कर दिया। उन्होंने कहा जी उन्होंने कॉम्प्लिकेट ये कहकर कह दिया कि मुसलमान औरतें क्योंकि आई हैं और कह रही हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, लिहाजा अब पूरे पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आ जाइए। तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर्सनल बोर्ड रहना चाहिए। मुझे पूरी बात कह लेने दे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला सिर्फ मुसलमान औरतों के मसले को लेकर रोशनी में नहीं रखा जा सकता। इस देश में 6 माइनॉरिटीज हैं। इस देश में आपने काफी बोला, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ। आपकी बात में एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप कह रही हैं कि सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमान औरतों को लेकर नहीं है, सबको लेकर है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मोदी सरकार कर रही है तो उसको आपको साफ होना चाहिए, सब लोग होना चाहिए। तो क्या सारी मैं आपको एक्सपोज करूंगी मैम, सॉरी माइंड ना कीजिएगा मेरी बात को। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो पहला ढांचा आया है, जो सारी पार्टीज को दिया गया है और कई उलेमाओं को और हर सेमिनरी को भिजवाया गया है, उसमें तो सब औरतों का जिक्र है। सिख औरतों के साथ क्या ज्यादती हो रही है, हिंदू औरतों के साथ क्या, जिस क्वेश्चन की आप बात कर रही हैं उसमें परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस मुसलमानों के लिए कितने हैं, सिखों के लिए कितने हैं, जैनियों के लिए, ये क्या बात नहीं, सुनिए। हमने हिंदुस्तान के मौलानाओं और आलिम दीन और जानकार लोगों से पूछा कि हलाला क्या है। लीजिए उनकी भी राय सुनते हैं। हलाला का मतलब ये होता है कि अगर कोई शख्स अपनी औरत को तलाक दे दे तो इद्दत के बाद वो किसी और मर्द से निकाह करती है, और निकाह करके फिर अगर वो तलाक दे दे तो फिर वो अपने पहले शौहर से निकाह करती है। तो ये बीच का शौहर जो निकाह करता है, तो इसको अगर तलाक ये दे देता है तो इसके लिए जो शरीयत में इसका लफ्ज़ है हलाला है। इतना इन्होंने जो डायग्राम बनाया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि कौन किससे शादी कर रहा है और तलाक कर रहा है। एक सीधी बात है कि मेरी बीवी नरगिस मेरे साथ झगड़ा होकर हमारा तलाक हो जाती है, हम कहते हैं कि अब क्या करें यार, उसको समझाया, दोस्तों जाके पागल हो गई तुम, मुझे को 2-4 दोस्त आके डांटते, दिमाग ख़राब हो गया क्या, डांट के कहते अच्छा भाई फिर शादी कर लो, तो हम कर लेते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि मैं अपनी बीवी से दोबारा शादी ना करूं? मैं बताता हूं। जी प्रॉब्लम क्या है। मुफ्ती साहब ने जो फरमाया, जो ज़किया बहन ने जो फरमाया, जी आप ये दोनों चीज़ों को इंटरकनेक्ट करिए सबसे पहले तो। बिल्कुल। और कन्फ्यूजन आपका जब ख़त्म होगा, हाँ। आप क्योंकि कंफ्यूज दिख रहे हैं, जी कन्फ्यूजन आपका जब खत्म होगा जब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो प्रैक्टिकलिटी की आपने बात की, जी अल्लाह ने इस चीज को इतना डिफिकल्ट बना दिया
तलाक ही मत दो, तलाक ही मत दो, तलाक मत दो। This is the basic point, फतेह यानी अब्यूज हो रहा औरत का वो तलाक नहीं नहीं नहीं, अगर अब्यूज हो रहा है तो वो दोबारा उसके दूसरे रास्ते हैं, उसके दूसरे रास्ते हैं। अल्लाह चाहता ही नहीं है तलाक होना, तो डिवोर्स पे बैन लगाया जाए क्या? देखिए सुनिए, यहाँ पर तलाक पे तो होना चाहिए, फिर तलाक पे तो बैन होना चाहिए। आप वही डिमांड देखिए, आप फिर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप एक तरफ जब आप तलाक पे बैन ही लगा रहे हैं, अल्लाह ने खुद बैन किया है तलाक को कुरान में। सर दैट मीन ये तो कैथोलिक बिलीव है कि डिवोर्स की राइट तो औरतों ने 200 साल जंग लड़ी है, आज जाके उनको नहीं। तो आप खुला की बात करिए, खुला तो बात है, खुला की बात कर लें। आप सारा के सारा कॉन्टेक्स्ट सामने रखिए। इन प्रैक्टिकलिटी देखिए, अल्लाह डज नॉट वांट्स टू हैव तलाक एज अ वेरी इजी नो। आई अंडरस्टैंड। मैं ये हो देखिए हो क्या रहा है प्रैक्टिस में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, आप प्रैक्टिस क्या है, गलत हो रहा है। मैं आपसे मसला अपनी जगह पर महफूज है। गलत को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? गलत हो रहा है, गलत को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने आपसे ये पूछा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा होता है और बाद में रिश्तेदार आके दोस्त भाई करके चाटा वाटा मुझे मार के कहते खत्म करो ये बकवास, क्योंकि मेरे अपने पेरेंट्स की डिवोर्स हुई और उसका जो नतीजा हुआ वो बहुत डेविस्टेटिंग होता है। अच्छा, वो कोई हमारे ला के बोले मियाँ बीवी को चलो वापस खत्म करो ये तलाक, निकाह पढ़ाओ, उसमें मैं क्या गलती कर रहा हूँ उसके अंदर? क्यों मैं नरगिस को बोलूं जाके किसी और से शादी करे? क्यों ना मैं वापस एक साथ मिलूं? इसमें कौन सी साइंटिफिक चीज है, गैर इस्लामी चीज है? इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं होना चाहिए। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? बिल्कुल वो हिसाब होना चाहिए। सब जानते हैं हलाला खराब है, सब अग्री करते हैं हलाला सही नहीं है, सब अग्री करते हैं तलाक बिद्दत सही नहीं है, हलाला तरीका सही नहीं, हलाला सही नहीं। ऐसा हलाला कैसे सही है सर? हलाला इसलिए सही है कि वो कुरान और हदीस से इस बात का इस्तेंबात होता है, कुरान और हदीस में इस बात की वजूहात मिले हैं। हदीस से ज्यादा कुरान से नहीं। ये देखें एक बात, हदीस से ज्यादा है बिल्कुल, तो कुरान और हदीस ही तो हमारी शरीयत है। नहीं कुरान ये क्या बात शरीफ है, हदीस कौन सी हदीस और कौन सी नहीं? आपको पता है कितनी हदीस है? ऑप्शन है आपके पास, किताबें मौजूद है ना तारिक साहब, ये आप आप जानते हैं कितनी हदीस है? बिल्कुल। कौन सी कितनी हदीस है? रसूलुल्लाह के जितने अक़वाल और अफ़आल हैं वो हदीसें हैं। कितनी नंबर मालूम है आपको? नंबर कोई नहीं बता लाखों सकता। में है। किस हदीस को आप मानेंगे? सिर्फ आप लाखों के हमें तो कुरान शरीफ का जो हमारे पास जो मौजूद है, ये बात जो हमारे पास हदीसों के कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी के तहत औरत और मर्द इक्वल है। क्यों? बहुत सारे इस्लाम का कानून अलग है, तो पाकिस्तान पे होना चाहिए फिर यहाँ क्यों बैठे? पूरी आजादी उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। हलाला डिफेंड कर रहे हैं, हलाला नहीं डिफेंड कर रहे हैं, हलाला नहीं डिफेंड कर रहे हैं, अलग कह रहे हैं। पार्टियों को फतेह साहब आपके जरिए से चैलेंज करता हूं, अगर इनमें हिम्मत है तो पार्लियामेंट में ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाके दिखाइए, यूनिफॉर्म यही मैंने लाके दिखाइए। पार्लियामेंट आपको यूसीसी का वो है बुलाया गया है, पार्टी ने पेश किया है कि बात ही नहीं करेंगे। अतीक भाई ने एक आइडिया दिया जो मुझे वैसे ही, मैं इतना बैकग्राउंड नहीं पता, मुझे बिल्कुल लगा कि दिस इज द सॉल्यूशन कि पार्लियामेंट के अंदर कानून प्रेजेंट किया जाए जो है, इससे आप मुत्तफिक होंगे? अगर ये कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके आए कि साहब ये है और ऑल पार्टीज मीटिंग हो, उसमें कंसेंसस हो और एक कानून निकले जिसके अंदर ये हो कि मुसलमान औरत के क्या राइट्स हैं, किसी हिंदुस्तान दूसरी औरत से कम ना हो, चाइल्ड मैरिज ख़त्म हो, ट्रिपल तलाक का जो जैसे आप चाहते हैं वैसे हो, और जो भी कोड है वो लीगल हो जाए। देखिए तारिक फतेह साहब, ये नहीं हो सकता पार्लियामेंट में, ये सोल्यूशन रेजोल्यूशन पास ही नहीं हो सकता। मतलब एक मिनट मैं उसको कंप्लीट कर दूं। जय साहब एक सेकंड, फतेह साहब आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं जी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। ये हमारे अतीक भाई की एक राय है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब बात इस्लाम की आती है, जब बात शरई कानून की आती है, जब बात हमारे उस तमाम कानून की आती है जिसके जरिए सब कभी हम इस्लाम से खारिज हो सकते हैं या दाखिल हो सकते हैं, कुछ ऐसे मसाइल दरपेश आ जाएंगे जब हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हमारी उस बारीकियों को नहीं समझते। उसके लिए हमें कुरान में लिखा है, मैंने आसान कर दी किताब आपके लिए, लेकिन वो नहीं समझ सकते उन चीजों को। अरे कैसे नहीं समझ? आप कैसे जानते हैं कि वो
समझ सकते हैं? हमारे नुमाइंदे बैठे होंगे ना, जब हमारे नुमाइंदे गिनती के हमारी शाजिया, अब शाजिया पहुंचेगी कभी, एक नुमाइंदा हमारी क्या बात करेगी? 250 लोगों से, लेकिन हमारे वहां पर शरई बात होनी चाहिए। मोहम्मद सईद नहीं करेंगे। सुनिए मेरी बात, जब वहां पर लोग पहुंचेंगे उसमें यह बात होनी चाहिए कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनके साथ बैठकर के इस पे डिस्कशन हो सकता है। स्कॉलर कहां से आगे जानकार है? स्कॉलर कहां से? एक किताब है, बताएं, पढ़ने किताब की बात कौन जानेगा? स्कॉलर हैं, कुरान के हम सब स्कॉलर हैं, कुरान के सब स्कॉलर बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। क्लर्जी का कोई रोल नहीं। ना ना ना, आपको इस्लाम में इमामों का कोई रोल ही नहीं है। इमामों का रोल नहीं चाहिए, इमाम रोल नहीं दिखाना चाहता। आप बताइए ना, आप बताइए ना, ये बताएंगे ना, वो बताएंगे इस तरीके से। हम स्कॉलर तो हम आम मुसलमान, आप स्कॉलर के सर्टिफिकेट किसको देंगे? कौन स्कॉलर? हुकूमत जिसे अपॉइंट करेगी, जिसे हुकूमत अपॉइंट करेगी, जिसे सर्टिफिकेट हुकूमत देगी, आप उसी को पकड़ लें। पार्लियामेंट के अंदर जब रेजोल्यूशन आएगा, जब ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आएगा, उसकी कमेटी हर एक सिटीजन को मौका मिलेगा, हर एक सिटीजन को, कमेटी, चाहे वो मौलाना हो, स्कॉलर हो, एक आम आदमी हो, एक आम ऑफिस में काम करने वाला औरत हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, टॉकिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक। अब अतीकुर रहमान साहब ने ऐसा सलूशन दिया है ना कि इस पे बगैर सोचे हुए रजामंदी हो सकती, लेकिन आप इनके साथ बैठे हुए इनकी बात को नहीं मार रहे कि उस पे ट्रिपल तलाक और ये जो है इस पे यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कोडिफाइड, और हलाले जैसी चीज पे पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके कहने के बावजूद मिसयूज हो रहा है। हमने हिंदुस्तान के लोगों से पूछा कि हलाला क्या है और क्यों है, आइए उनकी भी ओपिनियन सुन लेते हैं। 3 तलाक दे देते हैं, फिर रोते हैं कि हाय मैंने तलाक दे दी, अब बीवी से दोबारा शादी करना चाहते हैं, उसके लिए हलाला करना पड़ता है। मुल्ला जो हैं वो कहते हैं कि किसी और से अपनी बीवी का निकाह करवा दो और उसके बाद उसे तलाक दिलवा दो, फिर उससे शादी कर लेना। अरे भाई ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? वो कहते हैं हमारे पास मौजूद है, लिहाजा वो एक अरेंज करके हलाला करवाते हैं। दैट मैरिज इज बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। जो निकाह इसलिए किया जाए कि मैं ये निकाह करने के बाद तलाक दे दूंगा, वो निकाह ही नहीं है, वो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। ये एक ज़्यादती है और वन साइडेड है। आफ्टर ऑल जो राइट्स हैं वो सिर्फ आदमी के तो नहीं हो सकते, दोनों तरफ होने चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन तो इक्वालिटी, इक्वल बिफोर द लॉ और इक्वल जस्टिस ये तो प्रॉमिस करती है। आप पर्सनली हलाले के फेवर में या अगेंस्ट में? देखिए उस हलाले के फेवर में हम नहीं हैं जो आजकल हो रहा है। किस हलाल? मैं जो शरई तकाजे के तहत होता है, एग्जांपल मैंने आपको हलाले के बारे में क्लैरिटी क्यों नहीं कि हलाला ये है और ये हम नहीं पसंद करते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता है कि कुरान और हदीस से इस बात का इस्तिंबात होता है। ये कब तक हलाला के नाम पे औरतों पे जुर्म? कुरान शरीफ में नहीं होता है। जी जरूर, प्लीज। तारिक साहब, हलाला हर तरह से बैन होना चाहिए, पहली बात, हर तरह से। हर मुफ्ती साहब तैयार, मुफ्ती साहब जो भी कहते आप इनको समझ नहीं उनसे बात करें ना, मुझे क्या समझा रही हैं? मुझे तो इतने जूते पड़े बीवी से अगर मैं ऐसी बात करूं। जो बात कंफ्यूजन की है, जो मैं कहना चाह रही थी, जो आप अभी भी नहीं समझ पाए, वो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए बहुत सदियों के बाद हिंदुस्तान में क्यों नहीं समझा रही? वो लोग तो समझने के लिए मतलब तैयार नहीं, बिल्कुल बैठे हैं। खास तौर से अगर हम समझने को तैयार नहीं है, आपको पकड़ा बिरयानी खाते हैं, अब हम कहेंगे वही बनाएंगे, कोडिफाई करेंगे, कैसे कोडिफाई करेंगे? हमें घबराहट होती है, कोडिफाई करेंगे तो क्या होगा? कहने से नहीं, कोडिफाई कर देंगे, बात करने की जरूरत है। आप प्रैक्टिकल डर लगता है हमें सोचकर। तारिक साहब, 2 चीजें हैं। वो लोग कैसे कह रहे हैं? वो लोग क्या मतलब मुफ्ती साहब हैं? तारिक साहब, मैं जनरलाइज की करके बात कर रही हूँ, मैं खास तौर से इनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? ओके, चलिए। मैं मौलानाओं की इन टोटालिटी बात कर रही हूँ, जो ज्यादातर पेट्रियार्कल माइंडसेट के और जिनके दिमाग में कुछ चीजें बैठी हुई जिसको मिस इंटरप्रेट करके हिंदुस्तान में प्रैक्टिस हो रहा है। आप तो बात ही नहीं कर रही उनसे। नहीं, आपको कैसे पता हम बात नहीं कर रहे? भाई आपके शो पर बात नहीं कर रहे, अदरवाइज हम बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। अच्छा, ये भी पता चल गया है कौन किससे बात कर रहा है। अब आप समझ लीजिए। आप तारिक साहब, ऐसा है, मैं समझ गया, जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, जो गलत तरीके से प्रैक्टिस हो रहा है, उसका बंद होना चाहिए। ये वक्त बहुत सदियों बाद हिंदुस्तान में मुसलमान औरतों ने बाहर निकलकर खुलकर कम से कम कहना शुरू किया कि ये गलत है और इसको खत्म होना चाहिए। एक मौका आया था जहां पर गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, नॉन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, अभी का वक्त है वो
जब उनको बैठकर प्रेशर करना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पर्सनल लॉज के नाम पर एक पर्सनल लॉ बोर्ड है हिंदुस्तान में, अनफॉर्चुनेटली मैं बार बार कह रही हूँ, जिसकी की लीगैलिटी के ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं कि जो लोग वहां बैठे हैं वो किस माइंडसेट के हैं और किस बात को लेकर पॉजिटिव है और किस बात को लेकर नेगेटिव है। वहां पर पहली बात तो परसेंटेज ऑफ मुस्लिम औरतें बहुत कम है, अगर आप कंपैरिजन करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वहां पर। तो अगर शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन चाहिए था, क्योंकि इस वक्त प्रेशर था, 1-2-3 औरतें ऑलरेडी कोर्ट गई हुई थी, तो इस वक्त शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशन था वो ये था कि पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर एक प्रेशर डाल के कि आप कोडिफाई करिए और कहिए कि ये गलत है, फौरन मुसलमान औरतों को एक सोल्यूशन मिल जाता। बजाय इसके इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ले आई गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड साल भर के अंदर नहीं आ सकता।